What is the difference between the earlier diagram and this diagram? सर कैपेसिटर और रेजिस्टर की पोजीशन इंटरचेंज हुई है. Yes. When the capacitor was in feedback, it was acting as an integrator. Now the capacitor is in, you can say, input side. So it is acting as a differentiator. So let us analyze this one. Let's say I name this as some current going through capacitor, let's say IC. And this current I name it as a current going through the feedback resistor as IF. And I want to analyze. Now this voltage is at zero voltage because you can see non-inverting terminal is grounded. So this is at zero voltage, and due to virtual ground, this will be at zero voltage. Now I want to apply the KCL at this point. Let's say if I name this is V1 voltage, this is V2. So I want to apply the KCL at point V2, let's say, or you can say non-inverting terminal. So how I will write the expressions? IC is equal to IB plus IF. As Ri is very high, IB is negligibly small. So that implies IC is approximately equals to IF. So is it clear? I suppose this is very much clear. So yesterday we have seen a current flowing through this capacitor is given by C dV by dt, isn't it? Now here C is C1 and the voltage across this is, what will be the voltage? Here you are applying the input voltage in the inverting terminal and this voltage is zero. So you are as if you are applying V in minus 0. Now let us see what is IF. IF is a current flowing through this resistor RF. So what will be the current? बताओ कोई तो भी. IF की वैल्यू क्या होगी? IF I am taking in this direction. So this will be at higher potential and this will be at lower potential. So बताओ. V by R करना है. I is equal to V by R. 0 minus VO upon RF. Is it okay? 0 क्यों लिया? ये Yes, sir. V2 volt, ये V2 is at virtual ground. So we get this relation. So can I write an expression? अगर आप देख रहे तो जीरो छूट गया तो माइनस वीओ बाई आर एफ. सो डायरेक्टली आई कैन राइट वीओ इक्वल्स टू, ये आर एफ को उधर भेज देता हूँ, ये निगेटिव को भी भेज दिया, तो आर एफ सी वन डी बाई डी टी ऑफ. So we can observe that the output voltage is proportional to d by dt of V in. So we can say it acts as a differentiator because we know RF and C1 are constant. So we can very well say that the output voltage proportional to the derivative of or differentiation of input voltage signal. That's why we can say it is acting as a differentiator. Now this we can say, here it is said ideal or we can say basic differentiator. Why? We will ring the bell for concern, means warning bell. There we will try to show that it is having certain problem. Now what sort of problem it is? इसका frequency response कैसे रहेगा? How will you get the frequency response? गेन कैसे होगा? With frequency गेन बढ़ेगा कि कम होगा? जरा अंदाज लगाओ तुम. गेन क्या होगा? माइनस आर एफ अपन R1. अब R1 की जगह है यहाँ पे कैपेसिटर, तो XC1 आएगा. अब बताओ उस हिसाब से कि विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सर गेन भी इंक्रीज होगा. गेन भी इंक्रीज होगा, बराबर है ना. पहले वक्त में इंटीग्रेटर में गेन डिक्रीजिंग था, है ना, तो यहाँ पे गेन इंक्रीज होते हुए दिखेगा आपको. अब सही बोला जाए तो यही इसका ड्रॉबैक भी है. कैसे? कि द सिस्टम में बिकम अनस्टेबल दैट विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. ये मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, इसके लिए आइडियल के लिए बोलो या बेसिक के लिए. व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, it is increasing from minus 20 decibel per decade and now it is increasing with a rate of plus 20 decibel per decade. This is its roll off rate, we can say. So as it is going rising, it is plus. In the earlier case हमने जब इंटीग्रेटर में देखा था तो वो माइनस था, याद आ रहा है ना. जब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा था हमने माइनस, यहाँ पे बराबर है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है लाइक दैट. सो हियर व्हाट वी ऑब्जर्व, इट इज इंक्रीजिंग. Now this is the problem that it may become unstable क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसका गेन बढ़ते जा रहा है. तो आपने क्या बोला कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी XC1 कम होगा, इसकी वजह से RF बाई XC1 बढ़ते जाएगा. अब इसका एक और प्रॉब्लम है. आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में एक प्रॉब्लम देखा कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या रहता है, इक्विवेलेंट. अगर आप याद करें तो हमने सब केस में ऐसा लिखा था, आ रहा है
1 प्लस ए बी टाइम्स, लेकिन वो नॉन इन्वर्टिंग के लिए था। इन्वर्टिंग के लिए इट वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू R1, मतलब जो इनपुट में लगाया जाता है रेजिस्टेंस उसके बराबर रहता है। अब यहाँ इन्वर्टिंग होने के कारण ये मोड क्या होगा, यहाँ का RIF क्या रहेगा, इट इज इक्वल टू R1 में क्या लगाया कैपेसिटर, तो XC1 हो जाएगा। अब क्या हो गया कि इनपुट रेजिस्टेंस XC1 यानी कि कैपेसिटर पे डिपेंड है, और कैपेसिटर का रिएक्टेंस विद द फ्रीक्वेंसी इट इज चेंजिंग, एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस C1 डिक्रीजेस and thereby this RIF will decrease. This is problem. अगर input resistance बहुत decrease होगा, so it will be, so we can say there it has a practical problem. What sort of problem it is? That the gain RF upon XC1 increases with frequency of input. मतलब as the input signal frequency increases, the gain also increases, and at a rate of we can say 20 dB per decade. So this makes circuit unstable. हमारे वक्त ग्रेजुएशन में नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता था वाइवा में कि व्हेन इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर्स आर देयर व्हिच वन इज प्रिफर्ड, so the reason was integrators are preferred, and what was the reason? This is the reason, that with increase in frequency here the gain increases, so which may make it the system unstable, whereas in integrator with the increase in frequency the gain reduces, so there is less probability system will become unstable. And that's why one of the topic is there in the LIC, that is analog computer, where we use all these different stages of integrators to solve any differential equation. Differential equation मालूम है क्या? जैसे d square y by dt square plus dy by dt plus y something equal to 0, ऐसे डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन जो रहते हैं मैथमेटिकल, वो हम एनालॉग कंप्यूटर से सॉल्व करते हैं, यानी कि ऑप एम्प से करते हैं। तो उस समय डिफरेंशिएटर प्रेफर न करते हुए हम लोग इंटीग्रेटर प्रेफर करते हैं। सो what we have raised concern, that our gain increases with increase in frequency, and that makes the system unstable. And second reason is also the input impedance XC1 यानी RIF decreases with increase in frequency, जबकि input impedance कभी भी ज्यादा चाहिए ना अपने को, तो यहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि नॉइज ससेप्टिबल, नॉइज जल्दी पिकअप कर देगा, तो दिस मेक्स द सर्किट ससेप्टिबल टू हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज। एंड हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज के सोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर अपन स्विचिंग करते हैं, कोई स्विच दबाते हैं तो चैटरिंग होता है। पहले के जमाने में आपने रेडियो में सुना होगा, जब भी आप रेडियो लाइट बटन बंद या चालू करते वो रेडियो में पिकअप करता था, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज। सो इट मे ओवरराइड द इनपुट सिग्नल एंड दैट मे गिव द एरोनियस रिजल्ट। सो टू प्रॉब्लम्स आर देयर, वन दैट द गेन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड RIF decreases, that makes you can say susceptible to noise, the noise can be picked up. So this is the frequency response we have seen. Now how to get rid of this, how to make a proper differentiator? So for that practically we need to connect one capacitor in parallel with the RF and one resistor in series with the earlier capacitor. Before that the FA is the frequency. यहाँ पे FA कौन सी frequency होगी, जब आपका gain 0 dB यानी unity हो जाता है, कल देखे जैसे, is the frequency at which the gain is 0 dB, मतलब unity gain। so उसको की वैल्यू मिलती है हमको 1/2 इसका डेरिवेशन आप लोगों को नहीं है, इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, अदरवाइज अपेंडिक्स में दिया हुआ है RFC1। तो अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल डायग्राम में क्या रहेगा, अब इसमें ध्यान दो क्या चेंजेस है। और ऑलरेडी क्या था, सिर्फ ये RF था और ये C1 था। अभी प्रैक्टिकल के लिए हमने यहाँ पे एक R1 यहाँ पे भी डाल दिया और यहाँ पे RF भी डाल दिया। अल्टीमेटली एम क्या है, इट शुड एक्ट एज अ माइनस RF अपॉन R1, इस तरीके से। तो कैपेसिटर जो ओपन सर्किट हो जाता था अगर डीसी के साथ में, तो अब रजिस्टर है। सेम ये कैपेसिटर अगर गलती से हो जाए और ये इसको स्टेबिलिटी के लिए कनेक्ट किया है, अब दोनों के हम लोग रीजनिंग लिखेंगे कि हम लोगों ने ये सब क्यों यूज किया है, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू दैट, और इसके साथ में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में क्या चेंज आएगा। सो हियर वन मोर फ्रीक्वेंसी FC इज द यूनिटी गेन बैंडविड्थ ऑफ द ऑप एम्प, और F सम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसी को बोला है, ठीक है। सो व्हाट डू वी गेट हियर, व्हाट डू विद द प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर डायग्राम, बोथ द स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम क्यों आ रहा था, ये इनपुट रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था करके लिए। द स्टेबिलिटी एंड द हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ टू कंपोनेंट्स R1 एंड CF। एक हमने ये कैपेसिटर डाल दिया और ये एक रजिस्टर डाल दिया, इससे हम लोग का ये
प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर रेडी हो गया। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में क्या चेंज आएगा, लेट अस सी, क्या इसमें फर्क पड़ेगा, तो वही हमको देखना है कि हमारा प्रॉब्लम चल रहा था कि जैसे ही हम लोग इंक्रीज फ्रीक्वेंसी करते हैं तो वो गेन बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, एंड दैट सिस्टम कैन बिकम अनस्टेबल। तो यहाँ पे अभी हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिखा रहा हूँ। अभी ऑब्जर्व इन दिस फ्रीक्वेंसी अर्लियर, अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये इस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा था, ये वाला दिख रहा था हमको 20 डेसिबल पर डिकेड बढ़ता हुआ। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ द गेन इज इंक्रीजिंग, but at certain time when the frequency reaches certain of value, let's say f2, जो कि हम लोग नाम दे देंगे fb, ये अपने हिसाब से अभी के डेफिनेशन की जो f1 है वो fa है और ये जो है fb है, अपन ये याद रखेंगे। so at certain frequency fb the gain reduces at a rate of कितना, -40 डेसिबल पर डिकेड। कितना मैंने बोला अभी, किस रेट में डिक्रीज हो रहा है, तो +20 इस तरीके से बढ़ते हुए में अगर -40 घटे तो क्या होगा, +20 -40 will be equals to -20 decibel per decade, and that is what is shown here. Now the gain is reducing and it is avoiding the system to become unstable. Now the gain is decreasing. We want that at the higher frequency the gain should not become unstable. Now the gain is decreasing, so we can say this is the response of practical differentiator and this is the response of ideal differentiator or basic differentiator. So have you got this one? So this, the frequency at which this happens, fb, that is given by, or we can say the gain limiting frequency, the gain limiting frequency fb is given by, जो हमने अभी कंपोनेंट लगाया उसके कारण r1 c1 के कारण the gain will be decided or the frequency will be decided by this one, where we are keeping r1 c1 equal to rf cf, ये दोनों वैल्यू हम लोग सेम ले रहे हैं ताकि कॉम्प्लिकेशंस कम हो और सिंपल रिलेशन आ जाए। and we need to have the fa less than fb less than इसका unity gain bandwidth fc. so fa we have already calculated, बताया था that 1/2 pi rf c1, okay, और fb अभी लिखा है। आप चाहे तो r1 ca1 या rf c1 और ये दोनों इक्वल होने की वजह से this can equally be written as fa is equal to 2 pi rf c1 and what is fb, fb is 1/2 pi r1 c1, जिसको कि हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 pi rf cf। क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमने ये इक्वल लिया है, ये लिया इक्वल, इसलिए वी कैन राइट both the thing. And the condition to this act as a proper differentiator, what is the condition? As usual, that the t or the time period of input signal should be greater than rf c1. ये अगर maintain हुआ तो it will act as a differentiator. So I hope this is clear to you. Now just for the sake of clarity कि कैसे डिफरेंशिएटर एक्ट होता है, जस्ट मैं एक स्क्वायर वेव का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो बताते हैं अपन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा बताओ तो, व्हाट इज द आउटपुट फार्मूला, Vy इज इक्वल टू माइनस RF C1 dVin by dt, इस तरीके से करना है हमको। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ और स्पाइक्स आएंगे ना। अब इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकल एक बार बता देता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए तकलीफ ना हो। एक एकदम मैं जिसको क्या बोलते हैं आइडियल बता रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, ऑपएम्प का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ऑपएम्प की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन इस सिग्नल का। ऑपएम्प का आउटपुट क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑपएम्प में ये निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव का सोचना पड़ेगा, जो आएगा उसका अपोजिट करना पड़ेगा। तो याद रखो मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन क्या होता है। इस पहले सिग्नल को समझने की कोशिश करो कि ये जो सिग्नल है ये पहले ऐसा राइज हो रहा है, बराबर है, अपवर्ड राइज हो रहा है, यानी इसको हम इम्पल्स बोल सकते हैं। क्योंकि इम्पल्स किसको बोलते हैं, विच इज अकरिंग एट अ वेरी शॉर्ट टाइम। आपने हैमरिंग अ नेल फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, इम्पल्स फोर्स किसको बोलते हैं, पढ़ा है ना, कि हैमरिंग अ नेल, नेल को जब हम ठोकते हैं हैमर से, सो जो इतने कम टाइम में हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं कि विद इन अ शॉर्ट टाइम there is a high peak, we can say, then there is a constant value, then there is again a impulse value, this is impulse, then again constant and this one। तो अब मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन, इम्पल्स का डिफरेंशिएशन इम्पल्स ही आता है, ठीक है। तो ये आउटपुट और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ कोई तो। c का डेरिवेटिव क्या होगा, k का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 क्या होगा, 0 0। तो ये आ जाएगा 0, यस करेक्ट, ये 0 आ जाएगा। और ये जो इम्पल्स आया है वो जैसे का वैसे रहता है, तो ये निगेटिव में इम्पल्स आ जाएगा, ये निगेटिव इम्पल्स आएगा, सेम वे फिर से 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव इम्पल्स आएगा, ये निगेटिव इम्पल्स आएगा। इस तरीके से आउटपुट दिखेगा, जस्ट इम्पल्स 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 इम्पल्स। ये तो हो गया मैथमेटिकल। प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली कैसे होगा कि ये जो वेवफॉर्म है इसमें
आरसी के वैल्यू पर डिपेंड करता है उसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे, तो हमको इस तरीके के स्पाइक्स मिलेंगी। पहले तो क्या होगा, ये स्पाइक शूट करेगा और फिर ये डिक्रीज होगा, ऐसा डिक्रीज होगा, फिर ये ऐसा आएगा, फिर ये इम्पल्स नीचे स्पाइक करेगा, फिर ये ऐसा आएगा, यहाँ से ऐसा जाएगा, ये लाइक दिस एंड दिस विल गो ऑन। अब ये डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर, अगर इसमें आरसी की वैल्यू ज्यादा है तो ये इस तरीके से आएगा, ये देखो ये ऐसा गया और डिस्चार्ज धीरे धीरे हो रहा है तो ये ऐसा ऐसा जाएगा, फिर ये इम्पल्स आएगा, फिर ये धीरे धीरे इम्पल्स आएगा, लाइक दिस इट गोज ऑन। सो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उस वैल्यू ऑफ आरसी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये हो गया मैथमेटिकली। अब अपने ऑपेम पे आ जाते हैं। ऑपेम में क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, मतलब पॉजिटिव के वक्त निगेटिव आएगा और निगेटिव के वक्त पॉजिटिव आएगा, ये याद रखना है। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंपल्स आना था तो हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव इंपल्स आएगा, ये याद रखना है, तो गलती नहीं होंगे। यहाँ इसका जो आउटपुट है वो आएगा इस तरीके से, फिर निगेटिव के वक्त पॉजिटिव इंपल्स आएगा, फिर पॉजिटिव के वक्त निगेटिव इंपल्स आएगा एंड इट गोज ऑन। ठीक है, ये आउटपुट समझ में आया क्या? वैसे साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, तो दैट यू ऑब्जर्व योरसेल्फ। ठीक है, सो आई होप दिस डिफरेंशिएटेड टॉपिक इज क्लियर टू यू। जस्ट बताने के लिए मैं आपको डिफरेंट कैसे कैसे आएंगे एक डायग्राम दूंगा। क्या दिख रहा है अब आपको, देखो तो जरा। जब ये निगेटिव स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव स्पाइक आ रहा है, जब ये पॉजिटिव स्क्वायर है तो ये निगेटिव स्पाइक आ रहा है। अगर ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है मतलब ये क्या है, ये इट्स लाइक अ टी, टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1, यानी कि कांस्टेंट आएगा, माइनस टी का -1 आएगा, तो ट्रायंगुलर का स्क्वायर बन जाएगा। हमने इंटीग्रेटर में स्क्वायर का ट्रायंगुलर देखा था, साइन का कॉस आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके सर वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं समझा। हाँ ठीक है, एक बार प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर। प्रैक्टिकल का क्या? यस सर। हाँ हाँ, देखो अब ये जो इसमें जो वैल्यूज लगाए हैं हमने, अभी कैसा हो गया कि स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ RF और C1 था। सो ड्यू टू दिस RF एंड C1 इफेक्ट द गेन वाज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 20 डेसिबल पर डिकेड। नाउ अब क्या होगा इसका RF, ये XCF इन पैरेलल विथ RF, ऐसे बोल सकते हैं हम कि अब इस केस में RF इक्वल्स टू XCF पैरेलल विथ RF स्मॉल, और R1 क्या होगा, R1 विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा XC1, यानी अब नया वाला ये R1 हो गया और नया वाला ये पैरेलल कॉम्बिनेशन RF हो गया। तो इसका जो ओवरऑल गेन होगा, इसकी वैल्यू हम इस तरीके से चूज करेंगे कि स्टार्टिंग में ये हमारा बराबर इंक्रीज हो रहा है at a rate of plus 20 decibel per decade, but at certain frequency the gain reduces। क्यों reduce हो रहा है, अभी देखो, पहले क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि हमारा आ रहा था पहले तो RF अपॉन XC1, ये पहले गेन। अब ये ना होते हुए हमारे पास है XCF पैरेलल विथ RF अपॉन R1 इन एडिशन टू XC1, तो ये कॉम्पेंसेट कर रहा है ये कैपेसिटर जो है, और यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस को इन एडिशन टू ये XC1 के सीरीज में R1 लगा हुआ है, ये इसको कॉम्पेंसेट कर रहा है इस तरीके से कि अगर ये आइडियली ऐसे ऊपर बढ़ता तो ये यहीं पे अवॉइड हो गया, हमारा गेन डिक्रीज होता है। किस चीज में किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, अब आपको एक और बात बता दूं कि 1 RC कॉम्बिनेशन, कई बार ये 1 RC कॉम्बिनेशन नॉर्मली गिव्स राइज टू आइदर प्लस और -20 डेसिबल पर डिकेड। ठीक है, जब दूसरा और एक RC लगाते हैं तो वो +-40 डेसिबल पर डिकेड हो जाता है। यहाँ दो कॉम्बिनेशन है, वो इस तरीके से यूज किया है, उसकी वैल्यूज इस तरीके से चूज करेंगे कि ऑलवेज विल कीप FA लेस देन FB। FA लेस देन FB होने की वजह से स्टार्टिंग में the gain will increase, but after a certain value of FB, which is decided by this component R1 and C1, will make its gain to reduce by a -40 decibel per decade, -40 decibel per decade, and overall effect will be -20 decibel per decade। तो ये हमको गेन रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। ये वाली फ्रीक्वेंसी हमको मालूम है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन रिड्यूसेस टू यूनिटी, ये वाली इस तरीके से आएगा एंड द सिस्टम विल बिकम स्टेबल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर। ओके।